ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀ ਆ, ਮੇਜਰ ਆਰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਓਰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਏਓਰਟਾ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਦੀ ਆ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਬਟ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਡੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਆਰਟਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਓਰਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਏਓਰਟਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਆਰਟਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਆਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਲੀਅਰੀ ਆਰਟਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਟੀਨਲ ਆਰਟਰੀ। So these are the two further branches of the ophthalmic artery which will supply the oxygenated blood to different portions of the eye। ciliary portion ਨੂੰ ciliary artery ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਟੀਨਲ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹੀ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੀਅਰੀ ਆਰਟਰੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਟੀਨਲ ਆਰਟਰੀ ਆ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਆਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਆਰਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਫਰਦਰ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਨੇਮਸ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਨਸ ਡਰੇਨੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਈ ਤੋਂ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਟੀਨਲ ਆਰਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਟੀਨਲ ਵੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਟੀਨਲ ਵੇਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀਨਸ ਸਾਈਨਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਸਸ ਨੇ, ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਵਿਟੀ ਲਾਈਕ, ਔਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਨਸਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਵੀਨਸ ਸਾਈਨਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਗਗਨਦੀਪ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? then okay, then we will continue with the physiology of the sight. Today we will discuss about the physiology of sight.
सो साइट की फिजियोलॉजी में आप लोग जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री के काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में भी इसमें आएगा। तो ऑलरेडी यू पीपल हैव स्टडीड दैट थिंग, तो जहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। सो फिजियोलॉजी ऑफ साइट में क्या है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि कैसे प्रिज्म में से लाइट क्रॉस करती है। जब लाइट क्रॉस करती है तो फर्दर उसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है, वो बेंड हो जाती है अलग अलग पार्ट्स में, है ना। तो किसकी कितनी वेवलेंथ है लाइट की, कलर की, उस बेसिस पे के ऊपर इसका जो है रिफ्रैक्शन होगी, इसकी बेंडिंग होगी। आप लोगों ने लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, है ना, विबग्योर कि जो विबग्योर होती है जिसको आप लोग रेनबो बोल देते हो, है ना। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। सो विबग्योर ये कलर को इंडिकेट कर रहा है, वायलेट जो है वो, ठीक है। ऐसे सारे कलर्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो बताए हुए हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस, ब्लू रेडिएशंस, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सो सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो ऐसे एक जो है स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं, और यही इनका जो है वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली विबग्योर इसका नाम रख दिया है, ताकि आप लोगों को कलर्स जो है वो याद रह सके। सो हमारे आई के केस में भी ऐसा होता है। जो लाइट होती है विजिबल लाइट, जिसको हम लोग वाइट लाइट बोल देते हैं, उसमें एक्चुअली अलग अलग कलर की लाइट्स का स्पेक्ट्रम होता है। रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। सो जो मैंने ये आप लोग को बता ही दिया विबग्योर, तो उन्होंने पीछे से बोलना स्टार्ट कर दिया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट, जो जब उसकी रिफ्रैक्शन होती है। तो जब कभी भी हमारी आईज़ के अंदर किसी भी चीज़ की लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है और हमें कोई चीज़ जो है वो दिखाई देती है। इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक प्रिज्म ले लो, प्रिज्म में से वाइट लाइट को जब आप क्रॉस करोगे, तो इस ग्लास प्रिज्म में से जब वाइट लाइट जो है क्रॉस करेगी, तो वो आगे जा कर के बेंड हो जाएगी। तो उसकी जो बेंडिंग है अलग अलग रेज में, वो उसके कलर के बेसिस पे होगी। कोई कलर किसी तरफ बेंड करेगा, कोई कलर किसी तरफ बेंड करेगा। तो जो ये बेंडिंग हो रही है लाइट रेज की, वो डिपेंड कर रही है उन लाइट रेज के वेवलेंथ के ऊपर। किसी की वेवलेंथ कम है, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी जो है रिफ्रैक्शन होगी, जहाँ उनकी बेंडिंग होगी, ज़्यादा बेंडिंग होगी, जहाँ कम बेंडिंग होगी। सो जो कलर की रेंज है उसको आप लोग विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में देख सकते हो। तो जो मैंने ये विबग्योर बोला, इसका आप लोगों ने वेवलेंथ वगैरह पढ़ी होगी सारा कुछ। सो कब जो है रेनबो कब बनती है आसमान में, जब बारिश होती है और आसमान में जो है रेन के ड्रॉप्स रहते हैं, तो वो रेन के ड्रॉप्स जो है वो प्रिज्म का काम करते हैं। ऐसे प्रिज्म का काम करते हैं, जब वो ड्रॉप के बीच में से सन की लाइट क्रॉस होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक विबग्योर बनाती है, जिसको इंद्रधनुष बोल सकते हो, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बन जाएंगे। ओके, सो मेरे पास जितने कलर्स हैं मैं उतने कलर्स ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों को। सो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखी ही होगी, है ना, रेनबो सब लोगों ने देखी होगी। सो यू पीपल नो बेटर कि कैसे अलग अलग कलर्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो लाइंस होती हैं अलग अलग कलर्स की दिखाई देती हैं। सो ये क्लियर हुआ एक नॉर्मल सा जो एक फिनोमिना है लाइट का, उसकी रिफ्लेक्शन का, लाइट स्पेक्ट्रम का, और उसमें कितने कलर होते हैं, ये सारा कुछ क्लियर है आप लोगों को। Yes, ma'am. सो अब सपोज़ करो कि जो ये प्रिज्म है ये मेरी आई का लेंस है। सो जब इस लेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है, आप लोग को पता है हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, जब सन लाइट उस चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिस वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उस कलर की चीज़ जो है वो हमें दिखाई देती है। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में आप लोगों ने सारा कुछ ये पढ़ा हुआ होगा। सो हमारी आई का जब जो लेंस है, इसमें से जब ऑब्जेक्ट जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, सपोज के दिस रेड लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और मेरे आई लेंस के ऊपर स्ट्राइक की, तो आई लेंस क्या करेगा, उसको बेंड कर देगा, क्योंकि आगे क्या, यहाँ पे क्या है, मेरा रेटिना प्रेजेंट है और रेटिना में ये वेव्स जो है वो पहुँचेंगी। तो वो क्या होगा, वो इसके ऊपर जो है, मेरे रेटिना के ऊपर जो है फोकस हो जाएंगी। ओके,
सो उनको इस ढंग से बेंड करेगा कि वो सीधा जाके रेटिना के ऊपर फोकस करे, और मेरे रेटिना में जो मैंने आप लोगों को कल बताए थे फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, फोटो पिगमेंट सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वो प्रेजेंट रहेंगे और वो क्या हो जाएंगे, फिर फोटो सेंसिटाइज हो जाएंगे। उनकी सेंसिटाइजेशन जब होगी तब इम्पल्स जनरेट होगी और ऑप्टिक नर्व को वो इम्पल्स जो है पहुंच जाएगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो सब लोगों ने पढ़ा ही है, अलग अलग रेज जो है वो कैसे क्रॉस करती हैं, कैसे जो है उनकी रिफ्लेक्शन होती है कलर के अकॉर्डिंगली। ओके, सो हमारी आई जो है अगर वो क्लियर विजन चाहती है कि बिल्कुल मुझे साफ दिखाई दे, तो क्या होगा कि जब लाइट की रिफ्लेक्शन होती है विजुअल फील्ड के अंदर, वो रेटिना के ऊपर फोकस होनी बहुत ज़रूरी है। इस रेटिना के ऊपर अगर फोकस नहीं होगी प्रॉपरली तो उसकी वजह से फिर हमें दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमारा जो लेंस है वो क्या करता है, लाइट को ऐसे बेंड करता है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ रेटिना के ऊपर ही फोकस करे। और ये कैसे होता है, कैसे मतलब लेंस जो है कैसे ऐसे हेल्प कर सकता है, सिर्फ लेंस ही नहीं, हमारी आई का पुपिल होता है जो, वो भी हेल्प करता है लाइट को एक जगह पे फोकस करने के लिए, ताकि जो लाइट है वो एक ही जगह से क्रॉस करके जाए। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये हमारी अगर आई है, आई के अंदर एक ऐसे बॉल होती है, इसके अंदर फिर छोटी सी एक ब्लैक कलर की बॉल होती है जिसको हम लोग पुपिल बोल देते हैं। तो ये एरिया जो है, जो मैंने येलो कलर का ड्रॉ किया, इस एरिया का तो क्या है, हमारा आई कलर जो होता है ना, ब्राउन कलर होता है, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू होता है, ये तो वो एरिया है। लेकिन उसके बीच में ऐसे एक ब्लैक कलर की राउंड सी बॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पुपिल। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले भी बताया था कि जब आप लोग टॉर्च के साथ या कोई भी लाइट को अपनी आई के नियर बाय लेके जाओगे, पुपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, और जब लाइट दूर चली जाती रहेगी पुपिल का साइज़ बढ़ता जाता है। सो ये पुपिल क्या है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को अकोमोडेट करता है ताकि लाइट रेज की रिफ्लेक्शन प्रॉपरली हो सके। आपको पता है अगर हमारा ये पुपिल जो है इसकी मूवमेंट्स नहीं होंगी, ये फैलेगा नहीं या कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा। अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्ट होना मतलब इसका साइज़ छोटा होना, फैलना मतलब डायलेशन होना। तो पुपिल अगर डायलेट नहीं होगा या कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो उसके कारण फिर क्या हो जाएगा, अगर गलत वे में इसकी डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचेगा। रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। सपोज़ कि जैसे मैंने बोला जब लाइट नियर बाय आएगी तो ये पुपिल जो है, सपोज़ कि ये इसका नॉर्मल साइज़ है, ये छोटा हो जाएगा ताकि कम से कम लाइट जो पुपिल से क्रॉस हो और मेरे रेटिना को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और जैसे ही लाइट का अमाउंट कम हो जाएगा, लाइट दूर चली जाएगी, ये पुपिल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर क्रॉस हो सके और मेरा रेटिना जो है उसको ऑब्जर्व कर सके और हमें कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई दे। ठीक है, नॉर्मल मैंने आप लोगों को बताया हमारे पुपिल का साइज़ इतना है। ओके, नॉर्मली इतना साइज़ है। जब लाइट आंखों के नियर बाय ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा लाइट रेज एंटर कर रही हैं आई के अंदर, तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, और जब लाइट रेज कम हो जाएगी, चीज़ जो है दूर चली जाएगी, तो इसका साइज़ डायलेट हो जाएगा, ये फैल जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज को अपने अंदर ले सके। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ इतना? यस मैम। सो ओके, सो क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो आप लोग को पता है कि उसकी जो डेंसिटी, मतलब मीडियम की डेंसिटी चेंज होने की वजह से उसकी स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इवन लाइट जो है वो बेंड भी कर सकती है। सो अगर हम लोग बाहर की बात करें, बाहर क्या है, एयर है, एयर में जो है लाइट रेज जो है वो इधर उधर मूव हो रही हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारी आँख के अंदर एंटर करती है तो आप लोग को पता है हमारी आँख में फ्लूइड फील्ड रहता है ना, तो फ्लूइड का मीडियम चेंज हो गया, डेंस ज़्यादा हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, एयर की डेंसिटी कम थी, तो ये लाइट रेज जो है वो क्या है, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली बेंड कर जाएंगी। सो जब हमारे बायकन्वेक्स लेंस के ऊपर वो रेज आके स्ट्राइक करेंगी, फर्दर बेंड हो जाएंगी, ताकि वो लाइट रेज जो है हमारा लेंस उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे रेटिना के ऊपर फोकस कर सके। सो ये प्रिंसिपल जो है वो रेटिना को के लिए होता है ताकि लाइट जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस कर सके अच्छे से।
जब रेटिना तक लाइट पहुंचती है तो उससे पहले लाइट हमारे कंजक्टिवा को क्रॉस करती है जो बाहर वाली लेयर होती है, उसके बाद कॉर्निया को क्रॉस करती है, फिर आप लोग को पता है मैंने बताया था कि सिलियरी इरीज और लेंस के विचकार एक्वस फ्लूइड होता है, उसको लाइट क्रॉस करती है, फिर लेंस में से क्रॉस होके जाती है, फिर लेंस के बैक साइड पे विट्रस बॉडी है ना, विट्रस बॉडी में विट्रस फ्लूइड फिल्ड है, उसके बाद जा कर के पीछे रेटिना आता है। तो इतनी चीज़ों को क्रॉस करके जाना पड़ता है हमारी लाइट को। सो ये सारे क्या है, डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू द एयर, लेंस को छोड़ के, क्योंकि लेंस जो है उसकी रिफ्रैक्टिंग पावर जो है वो वाटर के जैसे होती है, लेकिन बाकी जितने भी फ्लूइड हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। सो जब कभी भी हमारे आईज़ में अब जो रिफ्रैक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाती है तो लेंस जो है उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा है ना, ओल्ड लोग होते हैं उनका लेंस चेंज करते हैं, या फिर हमारा जब कभी आई साइट वीक होता है तो हम लोग जो है स्पेक्टेकल्स लगाते हैं, तो वो जो स्पेक्स के अंदर जो मिरर रहता है उनका क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि हमारे लेंस को करेक्ट करने के लिए होता है। हमारा लेंस वो काम नहीं कर पा रहा, इसलिए जो बाहर से मिरर लगाया है वो काम करेगा, या फिर लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है ताकि वो अपना काम जो है अच्छे से कर सके। सो सपोज कि दिस इज माय लेंस, सो इस लेंस में से क्या है, लाइट रेज जो है वो क्रॉस करेंगी, तो लेंस में लाइट रेज हर तरफ से एंटर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा रेटिना है। सो इस रेटिना के ऊपर ही जो हर चीज़ फोकस होनी चाहिए, तो हमारा लेंस क्या करता है, इन रेज को ऐसे बेंड कर देता है, बिल्कुल रेटिना की तरफ बेंड कर देगा, ताकि जो लाइट रेज है वो सिर्फ और सिर्फ जा कर के रेटिना के ऊपर फोकस करे। अभी ये लेंस का काम पता चला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस बेंडिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके सो हमारा जो लेंस है, मैंने बताया कि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर होती है, और हमारी आई के सभी पोर्शंस में से सिर्फ हमारा आई लेंस ही है जो कि अपनी रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज कर सकता है। लाइट के अकॉर्डिंगली वो अपनी रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज कर लेता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट आई है और उसको कितना रिफ्लेक्ट करना है। जैसे हमारे माइक्रोस्कोप्स में होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग लेंस को चेंज करते तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। सो ये हमारी आई में क्या होता है, ये लेंस को चेंज नहीं करना पड़ता, लेंस खुद ब खुद अपनी रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज करता रहता है। सो जब कभी भी हमारे आई के अंदर लाइट रेज जो है वो एंटर करती हैं तो हमारा लेंस उनको रिफ्रैक्ट करता है और रेटिना के ऊपर फोकस करता है। सो जब कोई चीज़ जो है हमारी आई से दूर प्रेजेंट है उसमें से जब लाइट आएगी तो इसके लिए क्या है, हमारे लेंस को रिफ्रैक्शन कम करनी पड़ेगी। जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा नियर बाय होगा, कोई चीज़ जितनी हमारे आंखों के नियर बाय होगी उतनी ज़्यादा जो लेंस को रिफ्रैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब दूर की चीज़ है उसको देखने के लिए हमारी आईज़ को रिफ्रैक्शन कम करनी पड़ती है, हमारे लेंस को रिफ्रैक्शन कम करनी पड़ती है। जितनी चीज़ नियर बाय हो जाती है उतनी ही उसकी ज़्यादा रिफ्रैक्शन करनी पड़ती है। सो जो रिफ्रैक्शन फिर हमारे लेंस की बढ़ जाती है जैसे ही चीज़ जो है हमारी आंखों के क्लोज आती है ना। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों को आई साइट वीक हो जाता है, कई लोगों को चीज़ें नियर बाय दिखाई नहीं देती क्योंकि उनके लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, तो वो बंदे चीज़ को थोड़ा दूर रख के, अपनी आंखों से थोड़ा दूर रख के देखते हैं। हम लोगों ने घर पे पेरेंट्स को देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है जिनके आई साइट्स वीक हैं। सो आप लोगों ने, सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे वो अपनी किसी भी चीज़ को, जैसे न्यूज़पेपर ही पढ़ना हो, थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं, या किसी चीज़ को देखना हो थोड़ा आंखों से दूर रखते, अपना सर पीछे की तरफ कर लेते हैं, तो वो उनकी लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो प्रॉपर नहीं होती है। दैट्स वाई कि वो दूर की चीज़ों को रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो जो है वो चीज़ों को दूर रख के देखते हैं। सो रिफ्रैक्टिव पावर जब इंक्रीज़ होती है हमारे लेंस की तो क्या होता है कि हमारे जो सीलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारे लेंस को जो है पुल करना, अपनी पुलिंग की पावर को जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लेंस जो होता है वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है और ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है। इससे
इससे क्या होगा कि जितना भी नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है फिर वो लेंस जो है वो उसको अच्छे से रिफ्रैक्ट कर पाता है और हमारे रेटिना के ऊपर फोकस कर पाता है। लेकिन जब दूर प्रेजेंट होती है तब रिफ्रैक्शन कम चाहिए तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, और जो पिपल होता है वो भी जो हमारा लेंस होता है वो थिन हो जाता है, फिर से अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो लेंस वापस थिन हो जाएगा। इससे फिर क्या होगा, जो दूर की रेज आई हैं उनको रिफ्रैक्शन की ज़रूरत कम है तो वो जो है उसमें फिर जो है चीज़ हमारे रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगी। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो सपोज़ कि नॉर्मली मेरा लेंस जो है ऐसा है, सो बाइकन्वेक्स शेप्ड है मेरा लेंस जो है, नॉर्मली इतना साइज़ रहेगा। जब कोई चीज़ जो है नियर बाय आ जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा, और जब कोई चीज़ दूर जाएगी तो ये इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब नॉर्मल के जैसा हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, सो जितनी चीज़ नियर बाय आएगी इसको ज़्यादा रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, उस लाइट रेज को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा रेटिना के ऊपर, तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। ओके, थिक हो जाएगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नियर बाय, और उतना ही ज़्यादा ये थिन हो जाएगा, फैल जाएगा। ओके, थिन कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फार, जितनी चीज़ दूर रहेगी हमारा लेंस उतना फैलेगा, उतना थिन हो जाएगा। जितनी चीज़ नियर रहेगी हमारा लेंस जो है छोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि लेंस में क्या चेंजेस आएंगी? ओके, सिंपल सी बात है कि हमारे लेंस ने जो है लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करना होता है। सो रिफ्लेक्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि वो लाइट को बेंड कर देता है ताकि लाइट रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेटिना के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि चीज़ अगर नियर बाय है, जहाँ दूर पड़ी हुई है, फार डिस्टेंस पे है, फिर लेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर तो चीज़ें जो है फार डिस्टेंस पे है तो हमारा लेंस थिन रहेगा, लेकिन अगर नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसको आंख देख रही है तब जो हमारा लेंस है वो थिक हो जाएगा। कैसे थिक होगा या थिन कैसे होगा, ये डिपेंड करता है हमारी सीलियरी मसल्स के ऊपर। सो सीलियरी बॉडी आप लोग को याद होगा, सो उसमें मैंने बताया था सीलियरी मसल्स होते हैं और हमारे लेंस के साथ जो है सस्पेंडरी मसल्स जुड़े हुए होते हैं, लिगामेंट्स जुड़ी हुई होती है। तो जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सस्पेंडरी लिगामेंट्स जो है वो क्या करेंगी, वो जो है लेंस को थिक करने में हेल्प करेंगी, वो पुल करेंगी अपनी नीचे की तरफ। ओके, और जब कोई चीज़ दूर जाती है तब हमारे जो सीलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं लेंस को। लेंस अब वापस अपनी जगह पे चला जाता है और वो थिन हो जाता है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे लंबे हो जाएंगे इस केस में, और इस केस में उनका साइज़ छोटा हो जाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट्स का। ओके, और इस केस में जब थिक हुआ है तब उसका साइज़ जो है सस्पेंसरी मसल्स का वो लंबा हो गया, और जब थिन हुआ हमारा लेंस तो उनका साइज़ जो है वो छोटा हो गया। तो जो ये लेंस की मूवमेंट्स हो रही हैं, उसकी थिकिंग या थिनिंग हो रही है, वो हेल्प करती है हमें चीज़ों को दिखाई देने में कैसे हेल्प करती है, बिकॉज जब लाइट जो है इस लेंस में से क्रॉस करेगी तो लेंस जो है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। सो उस फोकसिंग के लिए जो है इस लेंस का रिफ्रैक्शन को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिफ्रैक्टिव पावर लेंस की कैसे चेंज हो रही है, लेंस अपने आप को थिक कर रहा है या थिन कर रहा है, उस बेसिस पे इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है पुपिल का साइज़ भी जो है वो चेंज होता है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि जब कभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाय है, लाइट नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो है आंख में एंटर कर रही है तो पुपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, है ना। सो सेम ही है, जैसे इसमें थिक हो गया उसमें क्या होगा, पुपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, जो है छोटा हो जाएगा, इस केस में बड़ा हो जाएगा। सो कितना लाइट जो एंटर करनी चाहिए आई के अंदर वो पुपिल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सो ऐसे मैंने बताया था पुपिल का साइज़ होता है जो कि इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, या फिर
डिक्रीज हो सकता है। सो नॉर्मली इतना साइज़ है, अगर ज़्यादा लाइट है तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, अगर लाइट कम है तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। सो इस केस में अगर हम लोग कंपेयर करें, जब हमारा लेंस थिन है तो पुपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, जब लेंस थिक है तो पुपिल का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। सो पुपिल का साइज़ जो है चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पुपिल का साइज़ चेंज नहीं होगा तो ज़्यादा लाइट हमारी आँखों के अंदर एंटर करके हमारे रेटिना को डैमेज कर देगी। सो ब्राइट लाइट जो है, जब ब्राइट लाइट होगी, ज़्यादा डार्क गूढ़ी लाइट होगी, तो उस टाइम पे पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, छोटा साइज़ हो जाएगा। और डिम लाइट के केस में क्या करेगा, पुपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा, फैल जाएगा। अगर पुपिल जो है वो ब्राइट लाइट के केस में डायलेट करे, जैसे मैंने बताया आँख के नियर बाय जब हम लोग टॉर्च लेके जाएंगे पुपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर वो छोटा होने की बजाय बढ़ जाए, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कभी भी आई साइट चेक करने के लिए हम लोग करवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास एक छोटी सी टॉर्च होती है, हमारी आंखों में टॉर्च मार के देखता है। सो वो टॉर्च से क्या नोटिस करता है कि पुपिल हमारा डायलेट कर रहा है या कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो डॉक्टर विल नोटिस ऑल दीज थिंग्स। सो सेम ही चीज़ है कि जब कभी भी ब्राइट लाइट जो पुपिल में एंटर करती है, अगर हमारा पुपिल डायलेट कर गया, फैल गया, जो कि नहीं होना चाहिए, उस केस में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी। जब वो हमारे आंखों के अंदर एंटर करेगी तो रेटिना तक भी ज़्यादा लाइट पहुंचेगी, और रेटिना में जब वो लाइट पहुंचेगी वो क्या करेगी, वहाँ पे रेटिना की सेंसिटाइजेशन को डैमेज कर देगी। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगी।